بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور کرونا وائرس کی تازہ ترین فگرز آپ کے ساتھ شیئر کریں تو لاہور میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شہر کے پرائیویٹ اور سرکاری ہاسپٹلز میں کرونا کے 506 سیریس مریض زیر علاج ہیں۔ 96 مریض انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل ہیں جبکہ 32 وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ بدستور جاری، ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے کیسز میں اضافے کے علاوہ اب اسپتالوں میں سیریس مریضوں کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہو گئی۔ کورونا وائرس کے 327 مریض سرکاری اور 179 مریض پرائیویٹ اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں 28 مریض ICU میں داخل ہیں، جن میں سے 20 کی حالت تشویشناک ہونے پر انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے۔ پرائیویٹ اسپتالوں میں 68 مریض ICU میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 12 وینٹیلیٹر پر ہیں۔ 74 روز کے دوران شہر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے ایک اور MPA کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ کورونا میں مبتلا ہونے والے MPA کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ مذکورہ PKLI میں انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے ایک اور MPA کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کورونا میں مبتلا ہونے والے MPA کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ مذکورہ MPA PKLI میں انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سرکاری اداروں میں پولیس میں کرونا وائرس کے مریضوں میں سر فہرست ہو چکی ہے۔ پنجاب پولیس میں 3 دنوں میں مزید 50 کرونا وائرس کے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور پولیس متاثرہ اضلاع میں پہلے نمبر پر۔ IG پنجاب شعیب دستگیر نے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے حوالے سے ڈیوٹیز دینے والے ملازمین کے کرونا ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد قرنطینہ سینٹرز، احساس پروگرامز اور ناکوں پر ڈیوٹی سر انجام دینے والوں کے ٹیسٹ کرانے کا عمل تیز کر دیا گیا۔ اب تک کرائے گئے ٹیسٹوں میں موصول ہونے والے نتائج میں مریضوں کی تعداد 607 ہو گئی ہے، جس میں 190 پولیس افسر اور اہلکار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ 412 مثبت ملازمین مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ 16,000 سے زائد پولیس ملازمین کے کرونا ٹیسٹ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اب تک کے موصول ہونے والے نتائج میں 2580 کے نتائج کا انتظار ہے، جبکہ 13,000 سے زائد کے نیگیٹو آئے ہیں، جبکہ 3 اہلکار کورونا وائرس کی وجہ سے شہادت حاصل کر چکے ہیں۔ IG پنجاب کا کہنا ہے کہ ملازمین کا بہترین علاج کرایا جا رہا ہے۔ کورونا کا شکار ہونے والے ملازمین کو فی کس 25,000 امداد دے رہے ہیں۔ گرمی بڑھتے ہی شہریوں کے لیے نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ لیسکو کا شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وزارت پاور ڈویژن کی ہدایت پر لیسکو نے 3 کیٹیگریز میں لوڈ شیڈنگ کا پلان تیار کر لیا ہے۔ عید الفطر کے بعد شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر میں کمرشل اور صنعتی سیکٹر بند ہونے کے باوجود لیسکو کی ڈیمانڈ 3400 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ دونوں سیکٹر کھولنے پر کمپنی میں بجلی کی کھپت 4000 میگا واٹ سے تجاوز کر جائے گی، جس پر وزارت پاور ڈویژن کی ہدایت پر لیسکو 3 کیٹیگریز میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کرے گی۔ 20% تک لائن لاسز والے فیڈرز لوڈ شیڈنگ سے مستثنی ہوں گے۔ اسی طرح 30% تک فیڈرز پر 3 جبکہ 40% تک 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ لیسکو کے 40% سے زائد لائن لاسز والے علاقوں میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ 28 مئی سے لیسکو کیٹیگریز کے مطابق بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دے گی۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت نے مارکیٹس، بازاروں اور شاپنگ مالز کے اوقات کار تبدیل کر دیے ہیں۔ ہفتے میں 4 دن مارکیٹس اور بازار کھلے رہیں گے جبکہ 3 دن لاک ڈاؤن رہے گا۔ نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں پنجاب حکومت نے مارکیٹوں، بازاروں اور شاپنگ مالز کے اوقات کار کا شیڈیول دوبارہ تیار کر لیا۔ ہفتے میں 4 دن پیر، منگل، بدھ، جمعرات مارکیٹیں، بازار اور شاپنگ مالز صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلیں گے، جبکہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار لاک ڈاؤن رہے گا۔ بیکری 10 بجے تک کھلی رہیں گی۔ اشیاء خورنوش کی دکانیں ہفتے میں 7 دن صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی۔ مارکیٹس اور بازار ہفتے میں 4 روز کھولنے کے فیصلے پر تاجروں کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ عید کے بعد کاروبار کھولنے پر حکومت کے شکر گزار ہیں، لیکن حکومت پورا ہفتہ بازاروں اور مارکیٹس کو کھولنے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اوقات کار میں بھی اضافہ کرے۔ حکومت نے عید کے بعد مارکیٹوں اور بازاروں کے اوقات کار صبح 9 سے شام 5 بجے کرنے کا اعلان تو کر دیا، تاہم اس حوالے سے تاحال کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے 21 مئی کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اس کے مطابق مارکیٹیں اور بازار صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اب حکومت ایک مرتبہ پھر سے مارکیٹوں کے اوقات کار میں تبدیلی کر رہی ہے، جبکہ مارکیٹیں پورا ہفتہ بھی نہیں کھولی جا رہی، جو کہ غلط ہے کیونکہ کرونا وائرس کے باعث پہلے ہی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ یہ کرونا نے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اگر ایسا کسی ایک چیز کو چھوڑیں گے ہم تو وہ ہم پر ہیوی ہو جائے گی۔ اگر ہم
कोरोना को छोड़ते हैं तो वो हम पर हैवी हो जाएगा। अगर हम तिजारत को छोड़ते हैं, वो इस मुल्क की मैशत आगे तबाह हो चुकी है। इसको बर्बादी से बचाने के लिए तमाम ट्रेड को इजाज़त दी जाए कि वो 7 बजे तक दुकानें खोले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग के सदर हाजी ताहिर नवीद कहते हैं कि हुकूमत इजाज़त अच्छा फैसला है, ताहम हुकूमत मार्केटों और बाजारों की औकात कार में इजाफा करे और पूरा हफ्ता कारोबार करने की इजाज़त दे। हम ताजर बरादरी की तरफ से हुकूमती अहलकारों और हुकूमती नुमाइंदों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बजाय शाम 8 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त हुकूमत से ले लेंगे मंजूरी। इसके अलावा हुकूमत सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करती है कि SOPs पर अमल किया जाए। ताजरों का कहना है कि हुकूमत पूरा हफ्ता सुबह 9 से 8 बजे तक कारोबार की इजाज़त दे ताकि लोगों का कारोबार चले और मुल्की मईशत में बेहतरी आ सके। हसन अली, सिटी 42। लग्जरी आइटम्स वाली बेकरीज का दौरानिया रात 10 बजे जबकि ग्रॉसरी स्टोर्स का दौरानिया 5 बजे तक महदूद। लाहौर सुपर स्टोर्स ग्रॉसरी एसोसिएशन हुकूमत पर बरस पड़ी। सुपर स्टोर्स की टाइमिंग रात 10 बजे तक करने का मुतालबा कर दिया है। ईद उल फितर के बाद शहर के 200 से जायद सुपर स्टोर्स तो खुल गए, लेकिन सुपर स्टोर्स का दौरानिया 5 बजे करने के बाद शदीद गर्मी के बायस इक्का दुक्का गाहक ही नजर आए। शहरी सुपर स्टोर्स की टाइमिंग 5 बजे तक महदूद होने पर हुकूमत पर बरस पड़े। इसको लोगों को फैसिलिटी देनी चाहिए क्योंकि हम लोग खुद 5 बजे कारोबार से वापस आते हैं, तो 5 बजे आगे जो स्टोर बंद होंगे तो हम क्या सामान खरीदेंगे। इसको मकसद है कि मैक्सिमम टाइम किया जाए कम से कम 10 बजे तक, ताकि जितना जो है वो टाइम ज़्यादा होगा रश जो है कम होगा। कम टाइमिंग की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है जिसकी वजह से स्टोर्स पे रश हो जाता है। लाहौर सुपर स्टोर ग्रॉसरी एसोसिएशन ने भी सुपर स्टोर्स खुलने का दौरानिया 5 बजे तक महदूद होने पर शदीद तनकीद की। सदर मोहम्मद अहमद नवाज ने कहा कि बेकरियां लग्जरी आइटम्स में आती हैं, वो तो 10 बजे तक खोल दी, जबकि सुपर स्टोर्स जहां से बुनियादी इशाए जरूरिया मिलती हैं उनका दौरानिया शदीद गर्मी में 5 बजे तक महदूद कर दिया। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम हमारा टाइम भी बेकरियों के मुताबिक 9 to 10 किया जाए, ये भाम नहीं होना चाहिए। लाहौर सुपर स्टोर ग्रॉसरी एसोसिएशन ने कहा कि सुपर स्टोर्स का दौरानिया रात 10 बजे तक करने से ही शहरी शदीद गर्मी से बचकर बुनियादी इशाए जरूरिया खरीद सकेंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ईद के बाद शहर की मार्केट्स और बाजार तो खुल चुके हैं, मगर गाहकों की तादाद न होने के बराबर है। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख और ताजिर कायदीन ने कहा कि ईद के बाद SOPs के तहत कारोबार खोलना खुश आइंद अमर है। ईद उल फितर के बाद शहर की छोटी बड़ी मार्केट्स खुल गयीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से मार्केटों और बाजारों के औकाते कार सुबह 9 से 5 बजे तक होंगे। ताजर बरादरी ने ईद उल फितर के बाद मार्केट्स और बाजार खुलने पर इत्मीनान का इजहार किया। ताजर कायदीन ने कहा कि SOPs के तहत कारोबार खोलना खुशाइंद अमर है। अब मार्केटों और बाजारों में रश नहीं होगा। गवर्नमेंट ने पहले टाइम दिया था कि ये हम सुबह 9 से 7 बजे तक करेंगे, लेकिन अब दोबारा उन्होंने 9 से 5 कर दिया है। ये टाइम जो है ना, इसको गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कस्टमर निकलता नहीं है, इसको 9 से 7 कर दे। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि ईद उल फितर के बाद SOPs के तहत कारोबार करने की इजाजत देना अहसन इकदाम है। उन्होंने कहा कि सनतो तजारत का पहिया चलने से ही मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर होगी, लाखों अफराद को रोजगार और हुकूमत को महासिल मिलेंगे। इरफान इकबाल शेख ने कहा कि अब कौम को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को जिंदगी का लाजिम जुज बनाना होगा। 9 to 9 बेस्ट होगा। तमाम स्टोर, तमाम हर चीज़ 9 to 9 खुले, और अगर होलसेल मार्केट है वो 9 to 5 होती है बंद, वो तो ठीक है 9 to 5 हो जाएंगी, बाकी रिटेल में 9 to 9 होना चाहिए। बिलाशुबा तजारती सरगर्मियाँ जारी और सारी रहने से ही मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर होगी और आवाम सुख का सांस ले सकेगी, मगर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद लाजम होगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाले 4 अफराद की लाशें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम की शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाले 4 अफराद की लाशें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। शनाख्त करदा अफराद में सर्वर रोड लाहौर कैंट की वहीदा रहमान, खारियाँ कैंट के मोहम्मद अताउल्ला, गुलशन जौहर कराची के जैनुल आरिफ और क्लिफ्टन कराची की यास्मीन शामिल हैं।
سینئر بیوروکریٹ خالد شیردل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت، صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت سمیت بڑی تعداد میں پولیس افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ سینئر بیوروکریٹ خالد شیردل کی نماز جنازہ میں وزیر صنعت و تجارت میاں اسلام اقبال، آئی جی پنجاب شعیب دستگیر، MNA علی پرویز ملک، MPA خواجہ عمران نذیر، کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود، لیگی رہنما خواجہ احمد حسان، ندیم محبوب، صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت، DC لاہور دانش افضال، چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک، اخلاق تارڑ محسن گورائیا، ناصر محمود کھوسا، لیگی رہنما کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، CCPO ذوالفقار حمید، زاہد اختر زمان، عرفان میمن، ڈاکٹر محمد شعیب اکبر، میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان، مسعود مختار، طلحہ برکی، فرید تارڑ، نبیل احمد ابان، غلام صغیر شاہد عادل سمیت پولیس افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ 24 نیوز کے سینئر ڈائریکٹر پروگرامنگ اینڈ کرنٹ افیئر سید انصار نقوی کی شہادت پر ہر آنکھ اشکبار ہے۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کی City 42 ہیڈ آفس آمد ہوئی۔ شہید انصار نقوی کی شہادت پر تعزیت اور دعا کی۔ رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر اور سابق میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی City 42 ہیڈ آفس آمد۔ PIA حادثے میں شہید ہونے والے ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی نیوز نیٹ ورک انصار نقوی کی شہادت پر تعزیت اور دیگر شہداء کے لیے دعا کی۔ دعا میں شیخ شاہد نائب صدر کنٹونمنٹ بورڈ، لیگی رہنما طلحہ برکی، راؤ شہاب الدین، شیخ علی شاہزیب، ڈائریکٹر نیوز City 42 خرم کلیم، سینئر اسائنمنٹ ہیڈ سید زین العابدین، اسائنمنٹ ایڈیٹر عامر رضا خان، سینئر رپورٹر زاہد چودھری، عرفان ملک اور عمران یونس سمیت دیگر شامل تھے۔ MPA خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ انصار نقوی ایک نیک اور شفیق انسان تھے۔ ان کی شہادت شعبہ صحافت کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اللہ پاک طیارہ حادثے میں شہید تمام افراد کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ سابق میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا کہنا تھا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے غم میں برابر کے شریک ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ پاک سٹی نیوز نیٹ ورک کے تمام ممبران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انصار صاحب جو تھے کام گو، خوش اخلاق، صاحب بصیرت اور صاحب علم صحافیوں میں ان کو شمار کرتا تھا۔ خاموش کھڑے رہتے تھے، ہلکی سی اسمائل، جب کوئی بات کرتے تھے بڑا اچھا جواب دیتے تھے۔ اس عید پر PIA کا طیارہ کریش ہوا اور ہمارے پیارے ساتھی اس میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، یقین کریں کہ وہ پوری قوم کو اداس کر گیا۔ اور جہاں تک بات انصار نقوی صاحب کی ہے، کیونکہ میں خود اپنے آپ کو کلیم کرتا ہوں کہ میں سٹی فیملی کا حصہ ہوں، انصار نقوی جیسا حلیم اور بہترین شخص میں نے زندگی میں بہت کم دیکھا ہے۔ کراچی طیارہ حادثے پر چیف ایگزیکٹو آفیسر PIA کی ہدایت پر افسران کی شہداء کے گھروں میں جا کر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ PIA ڈسٹرکٹ مینیجر سلیم اللہ شہانی اور ترجمان اطہر آبان کی کیپٹن سجاد گل، فلائٹ اسٹیورڈ فرید احمد، مسافر عمار راشد اور فروا علی کے گھر آمد ہوئی۔ PIA ڈسٹرکٹ مینیجر نے لواحقین سے اظہار افسوس کیا اور مرحومین کے بلند درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ شہداء کے لواحقین کو تدفین کے لیے 10 لاکھ روپے دیے۔ PIA ڈسٹرکٹ مینیجر سلیم اللہ شہانی کا کہنا تھا کہ طیارہ حادثے سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ شہداء کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ جیسے ہی طیارہ حادثے کی انکوائری رپورٹ مکمل ہوگی اسے پبلک کیا جائے گا۔ ترجمان پنجاب حکومت سعدیہ سہیل رانا اور عظما کاردار نے طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے پائلٹ سجاد گل اور خالد شیر دل کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ ترجمان پنجاب حکومت سعدیہ سہیل رانا اور عظما کاردار نے طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے پائلٹ سجاد گل اور خالد شیر دل کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا ہے اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ خالد شیر دل کی وفات سے پنجاب کی بیوروکریسی ایک قابل، متحرک اور ایماندار افسر سے محروم ہو گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران بھارت میں پھنسے 190 پاکستانیوں کی واہگہ بارڈر سے واپسی کا معاملہ ہے۔ پاکستان رینجرز پنجاب کی ٹیم نے پاکستانی شہریوں کو ڈس انفیکٹ کیا اور کورونا ٹیسٹ بھی کیے۔ پاکستان رینجرز پنجاب نے واہگہ بارڈر زیرو لائن پر پاکستانی شہریوں کا استقبال کیا۔ لاک ڈاؤن کے باعث بھارت میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے واہگہ بارڈر آج دوبارہ کھولا گیا۔ بھارت میں لاک ڈاؤن کے باعث 190 پاکستانی مختلف شہروں میں پھنسے ہوئے تھے۔ پاکستانی شہریوں کی جانچ پڑتال کے بعد گروپس کی صورت میں پاکستان انٹری شروع ہو گئی ہے۔ بھارت کے شہر گجرات، دہلی، چھتیس گڑھ اور دیگر شہروں میں پھنسے پاکستانی گزشتہ شام امرتسر پہنچ گئے تھے۔ پاکستان آنے والوں کی اسکریننگ کے بعد مختلف قرنطینہ سینٹرز منتقل کیا جائے گا۔ بھارت میں پھنسے پاکستانیوں نے حکومت پاکستان اور وزیر اعظم سے درخواست کی تھی کہ پاکستانیوں کی وطن واپسی پر واہگہ بارڈر پر رینجرز کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ جبکہ سٹیج اداکارہ رائمہ خان بھی کورونا وائرس کا شکار ہو چکی ہیں۔ خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا ہے۔
स्टेज की नामवर अदाकारा रायमा खान भी कोरोना वायरस की जद में आ चुकी हैं। उनकी तबीयत चंद रोज से नासाज थी, जिस पर उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि मुस्बत आया। रायमा खान ने CD42 से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि उन्होंने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है और वो अपने मद्दाहों से अपील करती हैं कि उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। इलावा जी रायमा खान का कहना है कि वो सबसे अपील करती हैं कि खुद को इस वायरस से महफूज रखें ताकि आपके बच्चे भी महफूज रह सकें। गर्मी का जोर टूटने का इम्कान है। जुमेरात की शब से पीर और मंगल की रात तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है और इसी पेश नज़र पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जारी करदा रेड अलर्ट के मुताबिक जुमेरात की शब से लाहौर समेत दीगर शहरों में गर्द आलूद और तूफानी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जुमेरात की रात से पीर और मंगल की दरमियानी शब तक लाहौर समेत सूबे के बेशतर अजला में आंधी और तूफानी बारिशों का इम्कान है। पोटोहार रीजन, फैसलाबाद, सरगोदा, झंग, टोबा टेक सिंह, चिन्योट, डीजी खान, रहीम यार खान, लिया, मुल्तान और भक्कर में भी गर्द आलूद आंधी, जबकि लाहौर समेत सूबे भर के दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। शहर में आज शदीद गर्मी थी तो मौसम के अस्ताए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। ठंडे ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाते रहे। सूरज ने आंखें दिखाई और पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा तो गर्मी के सताए शहरियों ने नहर को गनीमत जाना। शहरियों ने बच्चों के हमरा ठंडे पानी में डुबकियां लगाई और गर्मी भगाई। शहरियों का कहना है कि नहर में नहाने से गर्मी का एहसास कम हो जाता है। हमने तो नहर पर नहाने आना, घर में तो लाइट आ नहीं रही, हम फिर क्या करें, नहर पर ही आते हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है, नहर पर ही आना चाहिए हमें। कोरोना वायरस के बाद शहर के सब वाटर पार्क्स बंद हैं, इसलिए शहर के बीच गुजरने वाली नहर शहरियों के लिए नेमत है। कैमरामैन अब्बास भट्ट, कैमरा फारान यामीन, सिटी 42। ईद की छुट्टियों के दौरान पार्क्स और दीगर तफरीही मकामात बंद, मगर शहरियों की बड़ी तादाद ने नहर को पिकनिक पॉइंट बना लिया। 3 रोज बाद लाहौर पुलिस को शहरियों को नहर पर नहाने से रोकने का ख्याल भी आ गया। लाहौर पुलिस की जानिब से नहर की हदूद में आने वाले 10 थानों ने शहरियों को वापस घरों में भिजवाने के लिए इकदाम किए। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि शहरियों के नहर पर नहाने पर सख्त पाबंदी आयद है। शहरी कोरोना वबा के फैलाव के पेश नजर हुकूमती पाबंदी की खिलाफ वर्जी हरगिज न करें। सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर मस्जिदुल हराम में तमाम चीजों का साया नहीं रहा। सऊदी अरब में सूरज का यह नजारा 12:18 पर देखा गया। पाकिस्तानी वक्त दोपहर 2:18 पर सूरज ऐन काबा के ऊपर से गुजर गया। दुनिया भर के मुसलमानों को किबले की दुरुस्त सिमत के तयन का मौका मिला। पाकिस्तानी वक्त दोपहर 2:18 पर मस्जिदुल हराम में मौजूद तमाम चीजों का साया नहीं रहा। दुनिया भर में हर जानदार और बेजान अशिया के सायों का रुख बैतुल्लाह शरीफ की तरफ था। यही वो वक्त था जब सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर था और मक्का मुकरमा से बाहर दुनिया भर के मुसलमानों को किबले की दुरुस्त सिमत के तयन का मौका मिला। दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने लंबी छड़ी या राड की मदद से किबले के रुख का तयन किया। जदीद तहकीक के मुताबिक खाना काबा जमीन के ऐन मरकज में वाक़ है, इसीलिए जब सूरज अपनी गर्दिश मुकम्मल करते हुए खाना काबा के ऊपर पहुंचता है तो इसका साया नहीं रहता। इस साल दूसरी बार ये मौका 15 जुलाई को 2:26 पर आएगा। आगे बढ़ते हैं। हैंड सैनिटाइजर आपको कोरोना वायरस से तो बचा देगा, मगर गाड़ी में रखा हुआ हैंड सैनिटाइजर कितना नुकसानदेह हो सकता है, बता रहे हैं वकार घुमर अपने इस रिपोर्ट में। हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल से आप कोरोना वायरस से तो बच सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको गाड़ी में रखते हैं तो आप किसी और बड़े हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। आइए इस बारे में आज आपको बताते हैं। आजकल तकरीबन हर शख्स हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहा है। हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल समेत कुछ ऐसे महलूल इस्तेमाल होते हैं जो बराह रास्त सूरज की शुआओं, हीट और जलाने से आग पकड़ लेते हैं। स्क्रीन पर मनाजर एक ऐसी गाड़ी के हैं जो धूप में खड़ी रही और इसमें पड़ी सैनिटाइजर की बोतल को आग लग गई। कोशिश करें हैंड सैनिटाइजर को डैशबोर्ड या किसी ऐसी जगह पर ना रखा जाए जहां पर बराह रास्त सूरज की शुआएं पड़ती हों, बल्कि इसको किसी कपड़े में लपेटकर या गाड़ी की सीट के नीचे रख दिया जाए। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ वकार गुमन, लाहौर। एक पंजाब हुकूमत के वुज़रा की कारकर्दगी का मामला है। वुज़रा को आज से अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं।
पंजाब काबीना के वज़रा को कारकर्दगी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर जमा कराने की हिदायत दी गई थी, जिसकी मुद्दत जुमेरात को खत्म होगी। ईवान वज़ीर आला से काबीना अरकान को जुमेरात से रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी गई। ज़राए का कहना है कि कारकर्दगी रिपोर्ट में सूबाई वज़रा ने अपने महकमों में क्या किया सब बताने के पाबंद हैं। रिपोर्ट में वज़रा को बताना होगा कि अवामी मफाद में कितने मंसूबे शुरू किए, अवाम के मसाइल को हल करने में क्या किरदार रहा, सब शामिल होगा। रिपोर्ट से ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन से वज़रा सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते रहे, सब अवाम के सामने लाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब पहले खुद कारकर्दगी का जायजा लेकर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैक्सेस की अदायगी समेत गाड़ियों के मुतल्लिका दीगर मामलात के हवाले से सूबे भर में एक्साइज के 9 दफातर आइंदा मंगल के रोज से काम शुरू करेंगे। बार रूम्स खोलने की समरी भी डीजी एक्साइज ने हुकूमत को भिजवा दी है। एक्साइज मोटर ब्रांच कल की बजाय आइंदा मंगल के रोज खोलने का फैसला किया गया है। डीजी एक्साइज चौधरी मसूदुल हक ने कहा कि लाहौर समेत पंजाब भर में मोटर ब्रांचेस के सिर्फ 9 दफातर खोले जाएंगे, जबकि बाकी तमाम दफातर हुकूमती अहकामात के बाद खोले जाएंगे। लाहौर में 2 और दीगर रीजन्स में मोटर ब्रांचेस का एक दफ्तर खुलेगा। नया सिस्टम तैयार कर लिया गया है जो आइंदा मंगल को फाल कर दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत टाइम लेने वाले शहरियों को दफ्तर में दाखिले की इजाजत होगी, जबकि पहले से वक्त ना लेने वालों की रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स जमा नहीं किया जाएगा। कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में बार रूम्स खोलने की समरी भी हुकूमत को भिजवा दी गई है। हुकूमती मंजूरी के बाद बार रूम्स खोले जाएंगे और दफातर बंद होने से 3 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर मुख्तलिफ बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की मुंतखब ब्रांचेस तो खुल गई हैं, मगर ऑपरेशनल बैंककारी से का आगाज आज से होगा। मरकजी बैंक ने ईद उल फितर के मौके पर तवील तातीलात के दौरान अवाम के लिए महदूद बैंकारी खदमात की पूरी तरह दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए बुध के रोज बैंकों को मुख्तसर स्टाफ के साथ मखसूस ब्रांचें खोलने के अहकामात भी जारी किए थे, जिसके बाद मुख्तलिफ बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंकों ने अपनी सवाबदीद पर पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ कारोबारी मराकज, तिजारती मकामात वगैरह ने बुध को अपनी मुंतखब ब्रांचें खोली रखी। ताहम सार्फिन के लिए बैंकारी की मुकम्मल सहूलियात जुमेरात से दस्तयाब होंगी, जबकि बैंकों के औकात कार सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होंगे। परदेसियों की आमद का सिलसिला शुरू। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुल्क में लॉकडाउन के बायस मुसाफिर कश्मकश का शिकार हैं, जिसकी वजह बहुत कम लोग वापस आ रहे हैं। दूसरे शहरों में कयाम पजीर मुसाफिरों का ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद लारी अड्डा पर लाहौर आमद का सिलसिला जारी रहा। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुल्क में लॉकडाउन के बायस मुसाफिर कश्मकश का शिकार हैं, जिसकी वजह से बहुत कम लोग वापस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स का काम भी शदीद मुतासिर हो रहा है। शहर में मुर्गी का गोश्त सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फरोख्त न हो सका। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद कहते हैं कि महंगे दामों मुर्गी खरीद कर सस्ते दामों नहीं बेची जा सकती। हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली या पोल्ट्री फार्मर्स की हठधर्मी शहर में मुर्गी की कीमत को पर लग गए। ब्रायलर हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद 260 रुपए की बजाय 350 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा, जबकि शहर में मुर्गी की सप्लाई भी तलब के मुताबिक ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि इन्हें मुर्गी का गोश्त नहीं मिल रहा और जहां मिल रहा है वहां मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। दूसरी तरफ लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद का कहना है कि अगर इतवार तक मुर्गी के गोश्त की कीमत का मसला हल ना हुआ तो सोमवार को हड़ताल कर देंगे। फार्मर से महंगी मुर्गी लेकर सस्ती नहीं बेच सकते। उनका कहना था कि मियां असलम इकबाल पोल्ट्री एसोसिएशन की बजाय पोल्ट्री ट्रेडर से मुज़ाकरात करें ताकि कीमतों का मसला हल हो सके। मैं समझता हूँ कि मियां असलम इकबाल साहब ना तो रवायती वजीर हैं और ना ही रवायती सियासतदान है, बहुत मामला फहम इंसान है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो हम जो लाहौर के स्टेक होल्डर हैं असल उनसे मीटिंग करने की बजाय फार्मर से मीटिंग कर रहे हैं, फीड मिलर से मीटिंग कर रहे हैं और उसके मतलब नताइज जो भी निकले आपके सामने। अगर हड़ताल करें तो हम, अगर नुकसान करें तो हम, अगर पकड़े जाएं तो हम, और मुज़ाकरात के लिए हमें नहीं बुलाया जाता। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि इस वक्त फॉर्म्स पर मुर्गी मौजूद नहीं, जिसके बायस कीमत में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। ईद भी गुजर गई, शहर में सब्जियों और फलों की कीमतों में भी कमी नहीं आ सकी है। शहरी हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम न करने पर नाला दिखाई दे रहे हैं। हसन अली की रिपोर्ट देखिए।
माह रमजान के बाद ईद भी गुजर गई, लेकिन महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। शहर में लीमू 400 रुपए फी किलो तक ही फरोख्त होते रहे, जबकि आलू 60 से 70, प्याज 40 से 50, लहसुन 250, अदरक 350, खीरे 70 और भिंडी 80 से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही। शहरियों का कहना है कि माह रमजान के बाद ईद के दिनों में मुनाफाखोर माफिया सरगर्म रहा, जबकि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से सिर्फ ऐलानात किए जाते रहे, जबकि कोई इकदामात नहीं किए गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी और मौसर इकदामात करे ताकि मुनाफाखोर माफिया को लगाम डाली जा सके। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर में डकैती की वारदातों का सिलसिला न रुक सका। सांदा में फेस मास्क पहने डाकू मोबाइल शॉप लूटकर फरार हो गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। शहर में डकैती की वारदातें ना रुक सकी। अब कोरोना से बचने वाले फेस मास्क डाकुओं ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। सांदा के इलाके में मंगल के रोज डकैती की वारदात हुई, जहां लगे सीसीटीवी कैमरों ने मनाजिर अक्सबंद कर लिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि फेस मास्क पहने 3 डाकुओं ने राना मोबाइल शॉप पर वारदात की। डाकुओं ने दुकानदार और ग्राहकों को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर लूटा। दुकान से 4,60,000 नकदी और 24 मोबाइल फोन लूट के फरार हुए। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ताहम ताहाल डाकुओं की शनाख्त फेस मास्क की वजह से नहीं हो पाई। इरफान मलिक, सिटी 42। पीटीआई रहनुमा नदीम अफजल चंद के भाई एमपीए गुर्रेज अफजल खान के घर से चोर कीमती मलबूसात चुरा कर फरार हो चुके हैं। पुलिस ने मुलाजिम जैन की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात उनकी रिहायशगाह जोहर टाउन में हुई, जहां चोर घर के ताले तोड़कर दाखिल हुए और कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए, जबकि गुलरेज अफजल चंद अहले खाना के हमराह ईद की छुट्टियां गुजारने अपने आबाई इलाके गए थे। जबकि नवाब टाउन पुलिस ने गुलरेज अफजल चंद के मुलाजिम जैन की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घर में सिर्फ मुलाजिम रहता था और घर से कीमती मलबूसात ही चोरी हुए हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तैयारा हादसे में डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ सैयद अंसार नकवी शहीद समेत दीगर के लिए दुआ की गई। नसीराबाद में यौम तकबीर के हवाले से मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा तकरीब में सदर MSF राना अरशद ने शिरकत की। उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 में एटमी धमाके करके दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया, जबकि मौजूदा हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नैब के जरिए सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। नैब जो कुछ कर रहा है, नैब के चेयरमैन से मैं गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अदारों को अपना आज़ादाना रोल प्ले करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने ना कभी पहले डील की थी ना आज की है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो जब ही उनकी सेहत होती है ठीक, वो इंशाल्लाह फौरी तौर पर वापस आ जाएंगे, जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब आ चुके हैं। राना अरशद और सदर MSF पंजाब शहजाद खान समेत दीगर ने डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स 24 न्यूज़ सैयद अंसार अली नकवी शहीद और तैयारा हादसे में दीगर शहदा के लिए भी दुआ कराई। जो त्यारे केस में 96 लोग शहीद हो चुके हैं, उनके बुलंद दर्जात के लिए हम दुआ करते हैं। सदर MSF राना अरशद का कहना था कि यौम तकबीर के हवाले से मुल्क भर में MSF के ज़रिए एहतमाम तकारीब का सिलसिला जारी है, जबकि इस मौके पर केक भी काटा गया। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के हमरा उमर असलम, सिटी 42। मुस्लिम लीग काफ के कायदीन चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कोरोना से मुतासिर मरीजों को तन्हा नहीं छोड़ना, सेहत तक ख्याल रखा जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से जिले सदर रावलपिंडी जुबैर अहमद खान और फयाज तबस्सुम ने मुलाकात की। मुलाकात में चौधरी सारिक हुसैन भी मौजूद थे। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कोरोना से मुतासिर मरीजों को तन्हा नहीं छोड़ना, सेहतयाबी तक ख्याल रखना है। उन्होंने हिदायत जारी की कि बलदियाती इलेक्शन की तैयारियां शुरू करें और तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करके कारकुनान को मुतहरिक किया जाए, जबकि सैनिटाइजर्स, मास्क, राशन और इमदादी रकम मुतासिरा खानदानों में तकसीम करने का सिलसिला भी जारी रखा जाए। इस मौके पर मुस्लिम लीग हाउस रावलपिंडी को रिलीफ सेंटर बरकरार रखने के लिए लाहे अमल मुरतब किया गया। रावलपिंडी डिवीजन में कोरोना से मुतासिरा खानदानों में इमदादी रकम और रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम करने के हवाले से भी तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। मुस्लिम लीग नून ने आटा चीनी स्कैंडल पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद कहते हैं कि हुकूमत ने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया।
मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान का कहना था कि हुक्मरानों की बदतरीन पॉलिसी के बायस मईशत तबाह हो गई है। पाकिस्तान को तारीख की बदतरीन माशी तौर पर बदहाली का शिकार करने वालों, पाकिस्तान के गरीब पर 2 वक्त की रोटी तंग करने वालों, पाकिस्तानियों से झूठ बोलना बंद कर दो। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब का कहना है कि ईद पर तैयारा हादसे में शहीद होने वालों से अफसोस करने की बजाय वजीर आजम नथिया गली सैर करते रहे। राना मशहूद अहमद खान ने शहजाद अकबर पर तनकीद करते हुए कहा कि शहजाद अकबर अपने असासों के बारे में भी बताएं। जो पहले 10 या पहले 15 लोग जो इंडस्ट्री के लेते रहे, आप उनको तो भूल जाते हैं और आपको जिनका शेयर 1% से भी कम है, जो पहले 15 के अंदर भी नहीं आते, ये सब्सिडी लेने वाले, आप उनका बार बार जिक्र करके कौम को बेवकूफ बनाना चाहते हो। राना मशहूद अहमद खान का कहना है कि मौजूदा हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं और उन्होंने सियासी इंतकामी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं किया। कैमरामैन असद के हमरा उमर असलम, सिटी 42। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान 88% हदफ मुकम्मल कर लिया है। ईद तातीलात में भी 12,509 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई। सुबह पंजाब में गंदम खरीदारी हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब तक 39 लाख मैट्रिक टन से जायद और 88% हदफ मुकम्मल कर लिया गया है। हमारी गवर्नमेंट की जो हदायत हैं उसके मुताबिक दिन रात स्टाफ ने जो है वो कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह 45 लाख टन का जो टारगेट है वो हम तकरीबन 40 लाख टन जो है ना वो हमने पूरा कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशें अभी जारी हैं और इंशाल्लाह ये बकौल जैसे हमारे मिनिस्टर फूड अब्दुल अलीम खान साहब के बकौल ये है कि इंशाल्लाह ये तारीख का एक बड़ा टारगेट हम अचीव करने जा रहे हैं। मुहिम को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए ईद तातीलात में भी गंदम खरीदारी मराकज खुले रहे और सिर्फ ईद तातीलात में 12,509 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई। ईद तातीलात के दौरान हमारे तमाम जो लाहौर के सेंटर्स थे वो खुले थे और ये है कि वहाँ पे कुछ सेंटर्स पे परचेज़ भी हुई है। स्टाफ जो है वो हमा वक्त तैयार था इस काम के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काम, आज भी हम बैठे हुए हैं, हमारा ऑफिस में स्टाफ मौजूद है और इंशाल्लाह ये परचेज़ के जो मराहिल हैं वो चल रहे हैं। महकमा खुराक के मुताबिक अब तक 98% बारदाना तकसीम किया जा चुका है। जल्द रवा माली साल का 45 लाख मैट्रिक टन का हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अदिल चौधरी, कैमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। पंजाब पुलिस ने अगले माली साल में सालाना खरीदारी के लिए मनसूबा बंदी शुरू कर दी है। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम अजला और यूनिट्स को 10 जून तक अपनी डिमांड्स भिजवाने का हुक्म दिया गया है। पंजाब पुलिस ने आइंदा माली साल में सालाना खरीदारी के लिए तमाम अजला और यूनिट से डिमांड मांग ली है। आईजी पंजाब ने तमाम अजला को 10 जून तक अपनी अपनी डिमांड भिजवाने का हुक्म दे दिया, जबकि जुलाई में फंड्स के अजरा के मुताबिक खरीदारी के प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। रवा माली साल में बरवक्त इकदाम न होने की वजह से 2.5 लाख वर्दी, CTT के लिए मोबाइल टेस्टिंग मशीनें, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, जनरेटर्स और वॉक थ्रू गेट समेत दीगर अहम अशिया की खरीदारी मुमकिन न हो सकी, जिसके लिए अगले माली साल में बरवक्त इकदाम करने पड़ेंगे। मुतल्लिका ब्रांच का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पुलिस के बजट में 3 अरब का कट लगाने से खरीदारी बुरी तरह से मुतासिर हुई। अगले माली साल में बजट में फंड्स मुख्तस न होने के बाद अशिया की खरीदारी तरजीही बुनियादों पर की जाएगी। IG पंजाब ने तमाम अजला के मुतल्लिका अफसरान को अहकामात भी जारी कर दिए हैं, जबकि डिमांड भिजवाने के लिए 20 मई को तमाम अजला के मुतल्लिका अफसरान के साथ मीटिंग करके तरीक़ाकार वज़े कर दिया जाएगा। PTI अराकीन को नवाजने की कोशिश। पंजाब बैतुल माल काउंसिल ने 17 साला कानून को तब्दील कर दिया। ज़िला बैतुल माल काउंसिल की चेयरमैनशिप के लिए अहलियत तब्दील कर दी गई है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले अराकीन की जगह मुंतखब अराकीन का लफ्ज़ बदल दिया गया। पंजाब बैतुल माल काउंसिल की जानिब से अजला की सतह पर मुस्तहिक अफराद में फ़ंड्स की तकसीम के लिए ज़िला काउंसिल के चेयरमैन नामजद किए जाते हैं। ईद उल फितर पर LWMC के शहर में जीरो वेस्ट के दावों के बावजूद विफाकी कॉलोनी की हालत न बदल सकी। कूड़े करकट के ढेर ने इलाका कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। विफाकी कॉलोनी में जगह जगह कूड़े के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। लाहौर केनाल पर विफाकी मुलाजिमीन की रिहाइशगाहों पर मुश्तमिल विफाकी कॉलोनी कचरा कुंडी बन गई है। LWMC ने कुछ अरसा कबल रखे कंटेनर्स उठा लिए थे। कंटेनर्स ना होने के बायस मकीनों ने कूड़ा मरकज शाहराह पर फेंक दिया है। विफाकी कॉलोनी में कूड़े के ढेर के बायस ताफुन फैलने लगा है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।